Hello everyone, a very good evening. Good evening, good evening. Please settle down so that we can begin with our session. Hello Manasi, hello Shankar. फटाफट से settle down हो जाइए जिससे कि हम session को शुरू कर सकें. Yes, all of you, get settled down. Okay. Good evening, good evening. Okay, fine. So today we are on the last topic of this particular question. It's a humble request, भाई पहले समझ लिया करिए, सुन लिया करिए. जितने भी आप डाउट्स पूछते हैं, मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं वो कंटेंट में ऑलरेडी कवर कर लिए जाते हैं. सो जस्ट लिसन टू द कंटेंट केयरफुली, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके ओके, शैलेंद्र, उपासना, आदर्श, प्लीज सेटल डाउन. गुड इवनिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू अटेंड द पीटीएम. ठीक है, तो बच्चा पीटीएम अटेंड करना मत भूलिएगा. ओके, आज आपकी पीटीएम है वाया जूम, तो उसको अटेंड करना मत भूलिएगा आप लोग. ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. ओके, गिव मी अ मिनट. ओके, दैट्स फाइन. ओके बच्चा, ये आप वाई डू वी फॉल इन, आप रिवीजन ही तो कर रहे हैं. आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप डाउट सेक्शन में पूछ लें, और कोई अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कभी भी. ठीक है, चलिए. So today, tomorrow, like yesterday, we have completed the human immune system. ठीक है, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है. In the very first class, we have talked about the diseases, right? About the health. What is the difference between health and disease, and what is the difference between being disease free and being healthy? Okay, we have talked about different types of diseases. अलग अलग तरीके की बीमारियां कौन सी होती हैं. द वन विच इज प्रेजेंट सिंस बर्थ इज कॉन्जेनाइटल, जो हम बाद में एक्वायर करते हैं, अक्वायर्ड, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस. तो हमने ये सारी बातें की थी. ठीक है, then in the next class we have talked about the different kind of organisms, microorganisms, जो कि बीमारी cause करते हैं. We have, in which we have talked about virus, bacteria, protozoa, fungi and worms, as well as हमने कोच के postulates के बारे में भी डिस्कस किया था, right? On the third day, we have talked about the human immune system, that how our body fight with the disease, कि हमारा शरीर जो है वो बीमारियों से कैसे लड़ पाता है. आज के दिन में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? Today we are going to talk about treatment and prevention of the diseases. So yes, please settle down. Okay, fine. Now let us begin with the same. So there are two words in front of you, treatment and prevention. I hope that all of you are aware about the difference between both the word, both the terms. So talking about the prevention मतलब रुकावट, रोकना. ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम? बीमारियों से बचाव कैसे करें, हम खुद को बचाएं कैसे, दैट इज प्रिवेंशन. ठीक है, बीमारी हो जाती है if we get like infected, if we get okay, if we get any kind of disease. So okay, so how we get how we should treat it. What happened when I have already revised, I have already like given you a brief description of what we have talked in 3 class. Okay, in the past 3 classes. Okay, okay, so it's up to you. If you want to leave, you can. It should be your call. Okay, it's your call, Vanya. It's your call. I don't have any issue. आपकी मर्जी. मैंने आप, ठीक है. So we have, okay, it's your call. If you want, you can. No problem at all. Okay. तो बच्चे, for your kind information, आप यहाँ पे सीखने आए हैं. ठीक है, आराम से सीखेंगे. That is important for you. Okay. It's not that in a class of an hour I am going to repeat everything. ठीक है, that is your, okay, that is your work that you have to revise before coming to the class. Until and unless you won't revise by yourself, आप खुद से revise नहीं करेंगे, आपको topic समझ में नहीं आएगा.
So that is your duty, that you should revise before coming to the class. ठीक है? It's not our that we will give 20 minutes to revise कि हमने पहले क्या पढ़ा था, ठीक है, और फिर हम आज का शुरू करें, ठीक है, ऐसा नहीं होता है. ओके ओके, चलिए. नाउ let us talk about the treatment and prevention of disease. So treatment means, dear, आपको कोई बीमारी हो गई, you go to the doctor and the doctor will give you medicines and everything. That is treatment. ठीक है? What are we doing? What precautions are we taking कि भाई हम बीमार ना पड़े? इसको कहा जाता है prevention. Okay? Now we are going to talk about both of them in detail. So talking about the treatment, let us consider that you get suffered. Okay, आपको कोई बीमारी हो जाती है and you are having fever, ठीक है? So you can watch the videos, dear. Na? There is a facility. There is a very good facility that you can watch the videos. Recorded video watch करिए आप बच्चा, और उसके बाद आपको कोई issue है, कोई concept में दिक्कत है, तो आप वो पूछिए, ठीक है? That is better way, right? Okay, that is better way that you should rewatch the video, ठीक है, and ask your doubts, ठीक है. Anitish sir, help her with that, how she can watch the video, ठीक है. Fine, चलिए. Now your problem solved. चलो बच्चा. तो अब ways of treatment, how we can treat any particular diseases and any particular disease, right? So what happened? Let us consider that you get suffered from any disease जिसमें आपको fever आ रहा है, you are having ache, body ache, आपके शरीर में दर्द हो रहा है and everything like that. So when you go to the doctor, doctor will give you the medicines which will reduce the effect, right? ठीक है. तो बच्चा डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा जिसमें आपको क्या होगा, आपके इफेक्ट्स उसका मीन, यस प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. आचार्य डियर, यू कैन आस्क इट इन द डाउट सेक्शन. आप डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है. इन द ऐप देयर इज अ डाउट सेक्शन, यू कैन आस्क योर डाउट्स ओवर देयर. फाइन, चलिए. So when you go to the doctor will give you the medicine which will reduce the effect of that particular disease. कि भाई उसका जो भी effect है, fever हो रहा है, so fever उतर जाए, doctor वैसी medicine देगा, ठीक है. Doctor आपको advise करेगा that you should take rest, right? Doctor will help you. The doctor will give you the medicine which will heal your pain, जो कि आपके pain को कम करेगा. Fine. But talking about these things, बच्चा ये जो सारी हमने बात की हैं, ये जितने भी हैं, इसने कॉज को नहीं मारा. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसीडर दैट यू गेट सफर्ड फ्रॉम एनी डिजीज विच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड यू आर हैविंग फीवर. So taking rest will not kill the bacteria. ठीक है. रेस्ट लेके बच्चा बैक्टीरिया को नहीं मारते हैं. रेस्ट लेके बच्चा आप खुद, लाइक व्हेन यू विल नॉट टेक रेस्ट, आपका बॉडी का सिस्टम है जो काम करता रहेगा, ठीक है. सो यू विल नॉट गेट एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड सो ऑन. सो दैट्स व्हाई योर एडवाइस टू टेक रेस्ट. आपके जो मेडिसिन फीवर के लिए होंगे बच्चा, उससे आपका फीवर उतरेगा, राइट, बट कॉज नहीं मरेगा. सो देयर आर मेडिसिन विच किल द कॉज, ठीक है, जो कि बच्चा बैक्टीरिया होगा उसी को मार देंगे. They are called as antibiotics. Talking about the antibiotics here, okay. But what I told yesterday, let me see, Aditya, what you're saying, that saliva can kill. Okay, yeah, Aditya, like basically what happened, saliva, it can kill, it can kill a lot of pathogens, but we cannot say that it can kill all the pathogens, right? First of all, तो बच्चा ये ज्यादातर को मार सकता है. That's why we say that it provides non-specific defense, but will not say that वो सबको मार देगा. Okay, talking about the antibiotics, they are effective against, okay, not okay, they are effective against various microorganisms, but they are not effective against viruses. तो बच्चा ये वायरसेस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होती हैं. वाई सो? बिकॉज एंटी द वर्ड इटसेल्फ मीन्स अगेंस्ट एंड बायो मीन्स लाइफ.
So antibiotics are the chemical which are against life. Okay, talking about the antibiotics. So as I told you, they are chemical which are produced by microorganisms and have the ability to kill or inhibit the growth of the pathogens. Yes, they are. Okay, no problem dear. Okay, Shreyas, they are effective against, okay, they are effective against various pathogens. Okay, आप ये नहीं बोल सकते कि केवल बैक्टीरियल डिजीज के लिए हैं, ठीक है. दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट पैथोजेंस. हम इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं. हाँ, बैक्टीरिया के लिए ज्यादा कॉमन है. So talking about the first antibiotic, how was it get discovered? So there was a scientist known as Alexander Fleming. So बच्चा, he what he was doing, he was culturing, okay, he was culturing bacteria in the lab. He was culturing bacteria, वो bacteria को grow कर रहे थे. One day what happened, what he found, that at some uh, area at some area on the petri plate there are some fluid like structure. वहां पे ऐसा दिखा उसको कि कुछ fluid सा है, and where the fluid is, the microorganism, the bacteria is not growing. I am repeating it again. Alexander Fleming was basically culturing the bacteria, and one day what he found कि कहीं कहीं पे क्या है, फ्लूइड सा कुछ है, ठीक है, और जहां पे फ्लूइड पोर्शन है वहां पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है. So he was like, what is that? So he observed it under the microscope and he saw that the fluid is basically, there is, okay, there is a fungal growth. तो बच्चा वहां पे किसकी ग्रोथ हो रही थी, वहां पे फंगाई की ग्रोथ हो रही थी. द फंगाई इज पेनिसिलियम. So from this he come to know that yes, right, the penicillium can kill this particular bacteria जिसका नाम था Staphylococcus. तो इन्होंने कहा अच्छा, ये पेनिसिलियम इस स्टेफाइलोकॉकस को मार सकता है, मतलब अगर हमें इससे कोई बीमारी होगी, सो वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर fungi to kill this particular bacteria. So from this, देन भाई बस हो गया, एक बार डिस्कवर हो गया तो फिर तो इस पे काम चालू हो गया. So now the scientists, they start doing their work. Okay, there are so many chemicals released by certain organisms which may kill the pathogen. तो बस वहां से एंटीबायोटिक्स का बनना शुरू हो गया, right? So what are the antibiotics? They are the chemical produced by microorganisms, have the ability to kill or inhibit the growth of pathogens, right? The first antibiotic was discovered, okay, was the first antibiotic that was discovered is penicillin. Okay, was penicillin, and it was discovered by Alexander Fleming. तो Alexander Fleming ने ये discover किया था. Okay, now talking about the selective toxicity. तो बच्चा, जब केमिकल बनाया जा रहा होगा, obviously जब पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, अपना क्या नाम है इंडस्ट्रीज में, तो बेसिकली बहुत सारी चीजें ऑब्वियसली चेंज की जाती है. हेंस द एंटीबायोटिक्स, दे हैव सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी. व्हाट डू यू मीन बाय सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी? दैट दे शुड किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजन. तो मतलब भैया ये पैथोजन को ही मारे, जो अपना होस्ट है उसमें कोई डैमेज लेकर ना आए, और अगर लेकर भी आए तो दैट डैमेज शुड बी वेरी माइन्यूट, बहुत ही छोटा सा डैमेज वो होना चाहिए, राइट? Talking about the antibiotics, they are of two types, the broad spectrum antibiotic and the narrow spectrum antibiotic. Broad spectrum antibiotic is the antibiotic, ठीक है, are the antibiotics which may kill a variety of organisms, a variety of bacteria को मार सकती हैं. But talking about the narrow spectrum, it does not kill a variety of, it's very specific. ठीक है, इसका स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं है, ये ज्यादा लोगों को मार नहीं सकती है, इसका स्पेक्ट्रम बहुत ही नैरो है. सो इट कैन किल ओनली फ्यू, it can kill only either only specific one or only few types of bacteria. तो ये और only few types of pathogen. तो ये होता है बच्चा अपना narrow spectrum और broad spectrum antibiotic. So your homework for the day is अपने आप के लिए है, ठीक है, it's not like that you have to send it somewhere. You have to find out the example of the broad spectrum antibiotic and the narrow spectrum antibiotic. So this is about the antibiotics. Do you have any doubt in the antibiotics?
एक बार देखिए और बताइए क्या आपको डाउट है। यस, ओके फाइन, सो वी कैन मूव अहेड। हाँ, streptomycin, erythromycin, they all are example, but you have to find out the example of the try to this is for you only, examples of the broad spectrum antibiotic and narrow spectrum antibiotic. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, okay fine, I will explain you the broad and narrow again. तो बच्चा broad और narrow, okay, लवकुश इसी वजह से तो बच्चा, दैट्स व्हाई आई सेड यू कि दे प्ले लाइक इन द इंडस्ट्रीज, ठीक है, दे टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल दीज फैक्टर्स। बच्चे ऐसे ही ऑल ऑफ सडन लॉन्च नहीं कर दी जाती है, ओके वो केमिकल लिया जाएगा, उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे तो वो किया जाएगा, ऐसे नहीं कि ऑल ऑफ सडन दे विल जस्ट ओके। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जिसका स्पेक्ट्रम ब्रॉड है, विच मीन्स विच कैन किल वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। ओके, we'll talk about that also, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट द नैरो स्पेक्ट्रम, बच्चा नैरो स्पेक्ट्रम मीन्स जिसका स्पेक्ट्रम नैरो है, बहुत ज्यादा वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल नहीं कर सकती है। Why viruses are not effective against antibiotics? As I told you, antibiotics means against life. So viruses, they do not have their own machinery. वो खुद से survive नहीं कर पाते हैं। When they enter inside the body of the host, जब वो host की body के अंदर enter करते हैं बच्चा, तभी वो survive कर पाते हैं। So Acharya viruses, talking about the viruses, as soon as the viruses enter, a body forms antibodies, interferon, ये सारी चीजें बनाती है और उसको मार देती है इस तरीके से, ठीक है। Penicillium, okay, penicillium is the name of the fungi, while penicillin is the name of the first antibiotic. चलिए, कोई और डाउट है किसी को? नहीं तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए। व्हाट आर द लिमिटेशंस वी कॉन्फ्रंटेड व्हाइल ट्रीटिंग एन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। क्यों कहा जाता है कि प्रिवेंशन ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्यों कहा जाता है कि प्रिवेंशन ज्यादा जरूरी है, क्या क्या दिक्कत आती है इन्फेक्शियस डिजीज को ट्रीट करने में। आर यू टॉकिंग अबाउट रेट्रोवायरस और वेट्रोवायरस? या रश्मि, तो बच्चा वायरसेस वो तभी लिविंग है ना जब वो हमारे अंदर एंटर करेंगे। We became weak, that's okay. Yeah, obviously they are harmful if they're not taken, if we not take according to the dose. Okay, we become weak. Anything else? That why we should take precautions. भैया ट्रीटमेंट तो है ही, इलाज तो है ही, प्रिकॉशंस लेना क्यों जरूरी है? They not cure completely because treatment can take time and person cannot recover completely. Absolutely true. Yup. इट स्प्रेड फास्टली। हमें कोरोना अभी अगर आपको इन्फेक्शियस डिजीज की लिमिटेशंस को आप ट्रीट करने का पॉइंट है तो आप समझ सकते हैं। जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ कोरोना, ओके, we might get treatment for the corona, but basically, okay, agar the infectious disease, if we get spread, okay, if we get spread from any kind of infectious disease, first of all it start damaging our organ. In the severe case organ damage हो जाएगा, हमारी body weak हो जाती है, we will not able to do our task, ठीक है। And yes, yeah, the person remain confined to bed for a long time and उसकी efficiency भी कम होगी for that period of time, right? And yes, talking about dear, हमको weak तो हमको बना ही रही है, ठीक है। And the very important thing is that basically we act as a spreader. तो मान लेती हूँ कि मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, लेट अस कंसीडर दैट माय इम्यूनिटी इज स्ट्रांग, बट इफ माय ग्रैंडफादर इज देयर, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है और मेरी वजह से उनको इन्फेक्शियस डिजीज हो जाती है। इफ
because infectious disease is the one which can spread, and if I act as a spreader, so it will be harmful for my grandfather, right? Yeah, so that's why it is advised to take precautions, and precaution is always considered better than cure. ठीक है, सावधानी बरतिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, हर जगह पढ़ा है ना हमने। तो सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, हम जितने सावधान रहेंगे हम बीमारियों से बचे रहेंगे। ओके, नाउ सो आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि व्हाई, व्हाट आर द लिमिटेशंस वी कॉन्फ्रंटेड व्हाइल ट्रीटिंग एन इन्फेक्शियस डिजीज। ओके, चलिए ना, तो इसीलिए अब जरूरी है प्रिवेंशन की। ठीक है पूजा, व्हाट आर यू राइटिंग? सो प्रिवेंशन जरूरी है। प्रिवेंशन के वेज हो सकते हैं, ठीक है, कैसे कैसे हो सकते हैं बच्चा? जनरल और स्पेसिफिक। Nowadays you all are advised to wear mask. Okay, you are advised to wash your hands regularly. You are advised to not go to the crowded place. ठीक है, तो बच्चे अभी ये you are advised to keep your environment clean. तो ये सारी चीजें बच्चा क्या होती है, ये आपको किसी भी, अगर कोई भी विषय एयरबॉर्न डिजीज होगी, कोई भी डिजीज जो कि हवा से फैलती होगी, आपको यही एडवाइस किया जाएगा कि क्राउडेड प्लेस पे मत जाइए, ठीक है, आप मास्क पहनिए, बिकॉज they get spread through the air, they get spread रेस्पिरेशन, जब हम रेस्पायर कर रहे हैं तो वो दूसरे में थ्रू ड्रॉपलेट्स, जब हम स्नीज कर रहे हैं तो वो ट्रांसमिट हो सकती है। सो दीज आर द जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन कि भाई कोई भी एयरबॉर्न डिजीज में आपको ये प्रिवेंशन लेने चाहिए। यू शुड वेयर मास्क, यू शुड वॉश योर हैंड्स तो वैसे भी आपको वॉश करने चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा जनरल से प्रिवेंशन है। स्पेसिफिक प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं। स्पेसिफिक प्रिवेंशन मीन्स कि कोई पर्टिकुलर एयरबॉर्न डिजीज को ही वो प्रिवेंट करता है, ठीक है बच्चा। इसमें आता है इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, ठीक है। अभी अगर मैं आपको बोलती हूँ हैव विटामिन सी, मैं आपको बोलती हूँ हेल्दी फूड खाइए, मैं आपको बोलती हूँ वेजीज खाइए, क्यों? क्योंकि ये वेजीज आपकी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। तो बहुत जनरल सी बात हो जाती है कि इम्यूनिटी आपको बढ़ानी है तो आप किसी भी बीमारी से प्रिवेंट हो रहे हैं। लेकिन टॉकिंग अबाउट द वैक्सीन, व्हाट द वैक्सीन डू डियर, सो वैक्सीन, मैंने आपको एक्टिव इम्यूनिटी पढ़ाया था। तो बच्चा ये वैक्सीन क्या करती है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी पहले से ही बना देती है। तो अगर सपोज कोरोना की वैक्सीन आ गई तो बच्चा क्या होगा, आपको कोरोना की वैक्सीन इंजेक्ट की जाएगी। सपोज ए पर्सन है, उसको कोरोना की वैक्सीन इंजेक्ट की गई, so as soon as the vaccine of corona injected in the body of the person, basically vaccine में weak pathogen होता है, ठीक है, मतलब ऐसा पैथोजन होता है जो कि क्या करे, जो कि कोई डिजीज ना कॉज करे, ठीक है। सो यस, सो बेसिकली वो बस क्या करे, अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बना ले। तो बच्चा एंटीजन था, ओके, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई। तो जब स्ट्रॉन्ग कोरोना वायरस आएगा और उसको इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा तो बच्चा बॉडी में एंटीबॉडी पहले से ही बनी हुई है, ये इसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो ये रहता है आपका वैक्सीन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट है तो बताइए। ओके, टेल मी। एनीबॉडी एल्स? व्हाट आदित्य, क्या अभी अभिशेष विल टॉक अबाउट इम्यूनाइजेशन, हम उसके बारे में बात करेंगे। आदित्य, इस कॉन्सेप्ट में कहाँ पे आपको डाउट है मुझे वो बताइए। ओके, वैक्सीन पार्ट।
So dear, vaccine क्या करती है? If in specific we can take example of coronavirus, we can take example of the dear corona वायरस की वैक्सीन का एग्जाम्पल हम आराम से ले सकते हैं, ठीक है। अगर वो वीक पर्सन होगा तो उसमें ज्यादा या फिर नहीं बच्चा, क्या होता है डियर कि बेसिकली जब वैक्सीन दी जाती है, ठीक है, जब बच्चा देर इज सम ग्लिच शुभम मेरी साइड से इस वजह से, तो बच्चा जब वैक्सीन बनाई जाती है ना तो बहुत सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है, ठीक है, कि लाइक जो बुजुर्ग लोग होंगे, ठीक है, जो ओल्ड एज वाले होंगे उनमें कितना वैक्सीन दिया जाएगा, ठीक है, व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ द वैक्सीन इन द ओल्ड पर्सन, वो पर्सन जिसको कुछ बीमारी है, तो बहुत सारे टेस्ट के बाद वैक्सीन को, ठीक है, ओके, ओके, ठीक है। और जनरल में बच्चा, जनरल जैसे कि आपको मैंने ये बोल दिया कि यू शुड वेयर मास्क, तो आपको किसी भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में मैं आपको मास्क पहनने बोलूंगी, आई विल से दैट यू शुड वॉश योर हैंड्स, तो मैं आपको किसी भी ओके, तो मैं आपको किसी भी उसमें कंडीशन में बोलूंगी भाई कि हैंड वॉश करो, बीमारी से बचे रहोगे। कैन यू रिपीट? हु इन्वेंट नहीं बच्चा, डिस्कवर्ड, ओके, इन्वेंट नहीं किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्वेंट नहीं बच्चा, डिस्कवर किया था, ठीक है। इज इट क्लियर और यू हैव एनी डाउट नाउ? एनीवन, एनी डाउट? आदित्य, आदित्य सलोनी, क्या बच्चे क्या डाउट है आपको? एंटीजन, तो बच्चे मैंने आपको कल ही बताया था कि बेसिकली पैथोजन इज अ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंटीजन इज एंटीबॉडी जनरेटिंग मटेरियल, कोई भी मटेरियल जो कि एंटीबॉडी को जनरेट कर सके, या तो वो पूरा का पूरा पैथोजन हो सकता है, या तो वो पैथोजन से निकलने वाला केमिकल हो सकता है, ठीक है, ओके। सो एंटीबॉडी जनरेटिंग मटेरियल, आगे बढ़े, एंटीजन इज, ओके फाइन। तो चलिए बात करते हैं डियर वैक्सीनेशन की। सो लेट अस टॉक अबाउट वैक्सीनेशन, हम सबने लिया है ना, ठीक है, वैक्सीन तो हम सब ने लिया है। सो वैक्सीनेशन का मतलब होता है बच्चा जब हमारे अंदर वैक्सीन को इंसर्ट करवाया जाए, जब हमारे अंदर वैक्सीन को इंसर्ट करवाया जाए, ठीक है। इन्वेंट करना मतलब बनाना, ठीक है, ओके, इन्वेंट करना मतलब बनाना, डिस्कवर करना मतलब खोज करना। एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी यश बताया तो था नेक्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास में बताया तो था एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, ओके। तो बच्चा ये दो शब्द हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट ना, राइट। सो मैंने आई लाइक I have taken the there are so many vaccines here. I have taken the vaccine for let us consider, मान लेते हैं कि मैंने कोरोना की वैक्सीन ले ली, I have taken the vaccine for corona। तो बच्चा जब मैंने कोरोना की वैक्सीन ले ली ना डियर, तो मुझे कहलाया जाएगा कि मेरा वैक्सीनेशन हुआ। जब आपको पोलियो दिया जाता है, पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं, या फिर आपको मिजल्स रूबेला सबकी वैक्सीन मिली होगी, ठीक है, जब हम छोटे थे तब से हमको वैक्सीन मिलना शुरू हो जाती है, तो क्या बोला जाएगा कि वैक्सीनेशन, हमारी बॉडी को हम वैक्सीनेशन कराया गया, वैक्सीन दी गई। सो एडमिनिस्ट्रेट, ओके, ओके। सो बच्चा क्या बोलते हैं कि बेसिकली जब बच्चा वैक्सीन दी जाती है ना तो उसको वैक्सीनेशन बोलेंगे। अब जब जैसे ही वैक्सीन दी गई, इट मींस मेरी बॉडी के अंदर डियर एंटीजन डाल दिया गया, मेरी बॉडी के अंदर वीक पैथोजन वगैरह कुछ डाल दिया गया। अब इस वीक पैथोजन ने मेरी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बना दिया। सो दैट प्रोसेस, जब मेरी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन गया, is known as immunization, is the process whereby a person is made immune or resistant to an infectious disease, typically by the administration of a vaccine। तो मेरी बॉडी उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए मेरी बॉडी इम्यून हो गई, दिस इज नोन एज इम्यूनाइजेशन। प्लीज हैव अ लुक,
बेसिकली दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, बट देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ द वर्ड्स. चलिए, फाइन. शैल वी मूव अहेड? चलिए, या ऑब्वियसली पहले वैक्सीनेशन लेंगे, पहले वैक्सीन लेंगे. ठीक है, देखो पहले वैक्सीन लिया बच्चा. ठीक है, तो ओके, एंड देन immunity. Now, vaccine basically is the word taken from the word vacca, which means cow. ओके, तो बच्चा ये वैका शब्द से ली गई है जिसका मतलब होता है काओ. सो बेसिकली इट इज अ प्रिपरेशन ऑफ डेड एंड अटेनुएटेड जर्म. ओके, तो बच्चा क्या करते हैं, डेड या फिर वीक जर्म होगा, ये डिपेंड करता है. ठीक है, कोई केमिकल, सपोज लेट अस कंसीडर वैक्सीन क्या क्या हो सकती है. मान लेते हैं दिस इज अ कोरोना वायरस. ठीक है, तो या तो इसका वीक फॉर्म लेके डालेंगे, इससे बनाएंगे, या तो डेड कोरोना का होगा, या तो कोरोना से निकलने वाला कोई केमिकल होगा. सो इफ इट इज वीक इट इज कॉल्ड एज एन अटेनुएटेड, उसको वीक बनाया जाएगा, राइट. तो बच्चा जब ये लाइक during the process of forming a vaccine, they make sure that they have the ability to form antibody. So basically first time ये cowpox से related था. ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस में तो जरूरत ही नहीं होती डियर इतने. ठीक है, तो बच्चा बेसिकली पहले ये काउ से ही रिलेटेड था. ठीक है, काउ पॉक्स से रिलेटेड थी वैक्सीन की फॉर्मेशन की हिस्ट्री पूरी. सो दैट्स व्हाई वैक्सीन का नाम वैक्सीन पड़ा, बिकॉज वैका इज द साइंटिफिक नेम फॉर द काउ. ओके, फाइन. Is the preparation of dead and attenuated germs of a disease which on inoculation, which means which on injection, जो कि हमारी बॉडी में जब एंटर करता है तो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इसको बोला जाएगा वैक्सीन. वैक्सीन बनी किसकी होती है, दे आर मेड अप ऑफ इधर लाइव, किल्ड और कॉम्पोनेंट ऑफ जर्म जिसके पास एबिलिटी हो एंटीबॉडी बनाने की. वैक्सीन काम कैसे करती है डियर, तो लेट अस कंसीडर कि ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज की तरह है. जैसे कि सपोज आप फोर्स में जा रहे हैं, ठीक है, तो उससे पहले आपकी ट्रेनिंग होती है जो कि आपकी बॉडी को प्रिपेयर कर देती है उतनी रिग्रस फाइट के लिए. इसी तरीके से बच्चा वैक्सीन क्या है, ओके आई रिपीट इट, वरी नॉट. तो बच्चा वैक्सीन क्या है, पहले आपकी बॉडी में वीक पैथोजन डाला जाएगा एंड बिकॉज ऑफ विच योर बॉडी विल प्रोड्यूस एंटीबॉडी. ठीक है, एंड दे स्टे इन अवर बॉडी गिविंग इम्यूनिटी. जैसे ही हमको इफ वी आर एक्सपोज टू द डिजीज टू द स्ट्रॉन्ग पैथोजन, आवर बॉडी हैव एंटीबॉडीज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ. एक बार पूरे पॉइंट में फर्स्ट स्लाइड से कर रही हूँ, एक बार आप खुद से रीड करिए एंड देन टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट. ओके, ओके, फाइन. शैल वी मूव अहेड, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया. ओके, मूविंग अहेड, इस पार्ट को पढ़िए.
Shreyash, you will get that notes, right? You will get that. You'll get this PPT. Ein, okay. Someone is asking, Tinku is asking, ein means. बच्चा generally ein means in nature. Inoculation means injection. बच्चा bracket में लिखा हुआ है definition में ही. Ein means in nature. Okay? हाँ जी, वैक्सीन पैथोजन का ही बना होता है. पैथोजन का वीक फॉर्म होगा, वीक पैथोजन होगा, तभी तो एंटीबॉडी बनेगी. बच्चा जब तक पैथोजन ही नहीं जाएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग पैथोजन डाल देंगे तो फिर बॉडी तुरंत उससे फाइट नहीं कर पाएगी ना. अगर मेरे पास अचानक से आके आक्रमण हो जाएगा तो मैं कैसे फाइट करूंगी? अगर मेरे को थोड़े से पहले प्रिपेयर किया जाएगा कि भाई ठीक है, तो अगर अभी कोई आके करेगा तो फिर मैं आई विल ऑल्सो बी रेडी. तो इसी तरीके से बच्चा हमारी बॉडी रेडी रहती है. पैथोजन आर द डिजीज कॉजिंग जर्म्स. ठीक है, बीमारी फैलाने वाले जर्म्स को पैथोजन कहा जाता है. ठीक है, जर्म्स मतलब बेसिकली जर्म्स के अंदर कंसीडर हो जाते हैं सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे 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 छोटे, जो कि बीमारी फैला भी रहे हो नहीं भी फैला रहे हो. ठीक है, ऐसे भी हो. और बेसिकली जर्म्स आर देमसेल्फ. ओके, जर्म्स आर देमसेल्फ पैथोजन. ठीक है, जर्म्स कोई पैथोजन है बच्चा, एक ही तो बात है. जो हमारे 99.99% जर्म्स. एडवर्टीजमेंट नहीं देखा? So this is how vaccine works. Okay. ये पेज पढ़ लो, फिर कोई डाउट है तो बताओ, और शैल वी मूव अहेड. आगे बढ़े. So this is how vaccine works. जैसे ही हम एक्सपोज होंगे, बीमारी फैलाने वाले पैथोजन से वैक्सीन कैसे बनेगा? बीमारी फैलाने वाले पैथोजन को कमजोर कर दिया जाएगा और फिर हमारी बॉडी में डाला जाएगा, जिससे हमारी बॉडी को भाई पता हो कि इससे ऐसे लड़ना है. अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि कोई कंट्री है उसके पास ये सारे इक्विपमेंट्स हैं फाइट करने के लिए, तो अचानक से उसने फाइट कर दिया तो हालत खराब हो जाएगी. तो इसीलिए बच्चा क्या करेंगे, हमें पहले ही हमारे कंट्री को अवेयर करा देना. उसी तरीके से हमारी बॉडी को पहले ही अवेयर करा देना है कमजोर पैथोजन से ही. ठीक है, आगे बढ़े. थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट इज द इम्यून सिस्टम रिएक्ट्स विद द वैक्सीन इन द सेम वे इट रिएक्ट्स विद द लिविंग माइक्रोब. सही बात है, इट्स इजी ना. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि जैसे स्ट्रॉन्ग वाले के अगेंस्ट वो एंटीबॉडी बनाता, ठीक है, उसी तरीके से बच्चे उसने मेरी as it makes antibody against a strong pathogen in a same way. ठीक है, in a same way it will react with the vaccine, क्योंकि वैक्सीन भी तो वीक पैथोजन से बनी है. ठीक है, ओके. नो दे डू नॉट. ऑब्वियसली बच्चा पहले एनिमल पे ही टेस्ट किया जाएगा, डायरेक्टली ह्यूमन पे तो टेस्ट नहीं करते ना. ओके, ऑब्वियसली डायरेक्टली ह्यूमन पे तो टेस्ट नहीं करते ना, हम तो बहुत बाद में आते हैं. पहले तो बहुत सारे जानवरों को हमारी वजह से मार दिया जाता है, फिर वैक्सीन बनाई जाती है. आचार्य, देयर इज लाइक बहुत अलग अलग स्टेप होता है. ठीक है, हर वैक्सीन को क्रिएट करने वीक करने का. ठीक है, व्हाट हैपेंस सुरजीत, व्हाट्स योर डाउट? So if we are exposed to disease, so we have antibodies. If any vaccine is given to host and if it does not work to kill the bacteria, it reacts with bacteria, it will harm
or the vaccine is gonna kill. So Adarsh, what happened? It's there is a step, right? For example, पहले बच्चा starting में कुछ in the first like in very first the vaccine will be given to the animals. If they are successful to the animal, then they will then the vaccine will be injected to the human. कौन से ह्यूमन? जो कि वॉलंटियर करेंगे खुद, ठीक है, वॉलंटियर करते हैं वो ह्यूमन, तो उनको उसके पैसे भी मिलते हैं, राइट? तो वॉलंटियर करेंगे कि ठीक है भाई वैक्सीन दो, हमें जो होगा हमें देख लेंगे। तो पहले कुछ 100 लोग 100 of people in volunteer for it, ठीक है, और देन आफ्टर दैट डियर उसके बाद 1000 lakhs ऐसे, तो जब सब पे एंड ऑफ डिफरेंट एजेस ऑफ डिफरेंट हेल्थ ग्रुप, तो सबको दिया जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली वैक्सीन वो क्योर है ना डियर, वैक्सीन इज बेटर बिकॉज वैक्सीन इज प्रिवेंशन, दैट्स व्हाई इट्स बेटर। हाँ बच्चा सेम होते हैं, वो डिपेंड करता है, कंपोनेंट्स भी हो सकता है उसका, चिंकू लिखा तो था फर्स्ट पेज में, दे कैन बी कंपोनेंट ऑफ द जर्म्स आल्सो, ठीक है। तो ये कुछ वैक्सीन्स के नाम है, बाकी आप खुद भी सर्च करिए, ठीक है। डीपीटी, ओके, डीपीटी इज अ वैक्सीन फॉर डिप्थेरिया, पर्टुसिस एंड टिटनेस। हेपेटाइटिस बी के लिए बच्चा, ओके, हेपेटाइटिस बी के लिए बच्चा वैक्सीन हेपेटाइटिस बी ही है। पोलियो इज अ वैक्सीन फॉर पोलियोमिलाइटिस। बीसीजी इज अ वैक्सीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। सो एज यू कैन सी डीपीटी, ओके, डीपीटी इन तीन बीमारियों के साथ फाइट कर सकती है, इसीलिए डीपीटी को एक कंबाइंड वैक्सीन कहा जाता है। ओके, नहीं डियर, दे आर नॉट टेस्टेड ऑन प्रिजनर्स डायरेक्टली, पहले बोला था आपको, वॉलंटियर जो करेंगे उसमें। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो क्वेश्चंस पे अब हम, चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आपको ब्रॉड टर्म बतानी है, ठीक है। हम प्रीवियस टॉपिक से भी क्वेश्चंस करेंगे, इट्स नॉट दैट। बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, बीसीजी का फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, ओके। यस ऑब्वियसली बच्चा, तब क्योर, बच्चा वो तो प्रिवेंट कर, ऑब्वियसली एंटीबॉडी उसके अंदर, ठीक है। चलिए, लॉन्चिंग द पोल फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इजी है, हम बहुत बार कर चुके हैं। आई हैव लॉन्च द पोल। यस, ओके, इट्स इजी। हमने इसको, मैंने इसको आपको बोला ब्रॉड टर्म बतानी है ना, तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी है, आई वाज एक्सपेक्टिंग ये तो सबका करेक्ट होना चाहिए, बहुत बार कर चुके हैं सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट, आपने नेटल वर्ड सुना है? द वर्ड नेटल, इट्स अ इंग्लिश वर्ड जिसका मीनिंग मैं अभी नहीं बताऊंगी, तो द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द सेम। आपने नेटल वर्ड पढ़ा है, ठीक है। चलिए, बहुत से लोग आंसर बता भी रहे हैं। लॉन्चिंग द पोल फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, आई हैव लॉन्च्ड इट। ओके,
यस. ओके. हाँ, इन नेचर, बहुत आजकल नाउ डेज पीपल आर यूजिंग द वर्ड हैप्पी नेटल डे. तो नेटल का वर्ड होता है मतलब बच्चे बॉर्न. सो मदर से इन्फेंट. ठीक है, तो पेरी नेटल मतलब मदर से इन्फेंट. जब हम मम्मा के ही पेट में हैं, इन्फेंट हैं, तब तब जो डिजीज ट्रांसमिट होती है उसको पेरीनेटल कहा जाता है. ये भी इजी है, इसमें आपको अपना थोड़ा दिमाग यूज करना है. Raj, you have to report this to Raj Verma. You have to report this to Udit sir. ओके. इफ अ डिजीज जम्प्स फ्रॉम अ नॉन ह्यूमन टू अ ह्यूमन, जैसे अभी हमने रेबीज का फोटो देखा था ना, रेबीज काउ से, सॉरी, डॉग से सीधे एनिमल पे जंप कर रहा है, तो वैसी डिजीज को क्या कहेंगे? यू हैव टू यूज योर ब्रेन. इट्स अ वेरी इजी वन. ठीक है. लॉन्चिंग द पोल फॉर द क्वेश्चन नंबर 3. Yes, I have launched the poll. Okay. Okay, that's great. So we have 85% of you those who have marked it correctly. बहुत सही. हाँ जी, zoonotic होगा. Zoo मतलब animal. Next question. जब हमको chronic stress है, chronic word सबको पता है ना. So if a person has chronic stress, it should be linked with the various health problems. तो आपको क्या लगता है कौन कौन से health problem से related होगा? ठीक है, chronic stress, chronic word हमने पढ़ा हुआ है. So it should be related to headache, to anxiety, to depression, or the all of the above. ठीक है भाई, launch कर देते हैं poll. Many of you are answering in the chat box. Okay, I have launched it. Okay, mark your answer. बहुत सही. हाँ, तो मतलब क्रॉनिक मतलब जब बहुत लंबा लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है, तो आपको भी पता है जब हम बहुत दिनों तक स्ट्रेस लेते हैं किसी चीज के लिए, तो हमको हेडेक, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियां पकड़ सकती हैं. ठीक है, ये करिए. ओके. द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन. ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ वीकेंड पैथोजन इनटू ह्यूमन बॉडी. चलो देखते हैं कौन कौन इसको सही मार्क करता है. रेडी? एक सेकेंड ना. गिव मी अ मिनट, राइट. चलो, launching the poll for this particular question. Mark your answers. Yes.
ग्रेट, 77%। अभी पढ़ा ना हमने इसको, वैक्सीनेशन बोलेंगे। ये तो हमने लास्ट क्लास में भी किया था, सेम क्वेश्चन। एक्टिव इम्यूनिटी में बी गेन्ड बाय, ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था, तो ये तो बहुत से लोग ही मार्क कर सकते हैं आराम से। सो आई एम लॉन्चिंग द पोल, राइट? Okay, so launching the poll for the question number 6. So guys, today we have last class. Okay, today I have last class with all of you. It was great teaching all of you. बहुत मजा आया मुझे भी पढ़ा के. I hope आप लोगों को भी कुछ नया सीखने मिला होगा पूरे सेशन में. ठीक है, आप लोगों ने पूरे सेशन में एंजॉय किया होगा, एंड आई होप दैट आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू व्हाई डू यू फॉल इल, ठीक है, 9th एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे. सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड द क्लास. ओके, so see you all in the PTM at 7 p.m. Okay, it's 7, yeah, today at 8, right? At 8 p.m. today. That's great. 67% ऑफ यू. तो इसको हमने लास्ट क्लास में भी किया था. एक्टिव इम्यूनिटी व्हेन द एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में खुद से बन रही हैं, तो वो नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीन के थ्रू ही बनती हैं. ओहो. नेक्स्ट, ये तो इजी है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंबाइंड वैक्सीन? विल हैव अ लुक ओवर द लीडर बोर्ड एट द लास्ट. ठीक है, आज लास्ट बच्चे. जूम सेशन मतलब आज की जो मीटिंग होगी ना, इट विल बी थ्रू जूम. ठीक है, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, जूम एप्लीकेशन से पढ़ेंगे. ठीक है, जहाँ पे आप भी मुझसे देख सकते हैं, आप मुझसे बातें कर सकते हैं. ठीक है, और मैं भी आपसे बातें कर सकती हूँ, मैं आपको देख भी सकती हूँ. चलिए, launching the poll for the question number 7. So do not forget to join the Zoom meeting at 8 p.m. today. ठीक है, you can talk to me. I can see you guys. It will be a fun. I have launched the poll. Okay, that's great. So yes, obviously DPT. Last question of the day, and this is the last class with all of you. I hope that you all enjoyed it. तो बच्चा, द प्रोसेस ऑफ वीकनिंग अ पैथोजन, किसी पैथोजन को कमजोर करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? लॉन्चिंग द पोल. जूम लिंक यू विल गेट इन योर टेलीग्राम ग्रुप ओनली. आपको टेलीग्राम ग्रुप पे आपका जूम लिंक मिल जाएगा. ओके, लॉन्चिंग द पोल. चलिए, मार्क योर आंसर. ओके, आई हैव लॉन्च द पोल. द प्रोसेस ऑफ वीकनिंग अ पैथोजन, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ. ओके फाइन. सो वी हैव 33% ऑफ यू. बच्चा, अटेनुएटेड कितनी बार बोलती हूँ ना? अटेनुएशन. अटेनुएशन मीन्स वीकनिंग अ पैथोजन. सो यस, टुडे वी हैव टॉक्ड अबाउट ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज. ट्रीटमेंट में बच्चा हमने एंटीबायोटिक्स की बात की है ज्यादातर, और वैक्सीन में प्रिवेंशन में डियर हमने वैक्सीन के बारे में डिस्कस किया है. ठीक है, सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू गाइज एंजॉयड द सेशन. ठीक है, आपने पूरा सीरीज एंजॉय किया. लेट अस हैव अ लुक ओवर द लीडर बोर्ड. सो वी हैव आदित्य, श्रेयस लीडिंग द लीडर बोर्ड, शंकर, नीतीश, लवकुश, सुरजीत, बम, दे आर ऑन द
ओके, दे ऑल आर ऑन द थर्ड पोजीशन। ठीक है, चलिए एक बार लीडर बोर्ड और देख लीजिए। सो सी यू ऑल इन द जूम सेशन, वहां पे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस। आई होप दैट आप लोगों ने यहाँ पे आके कुछ नया सीखा। बाय बाय, बाय गाइस, टेक केयर। थैंक यू मानसी, थैंक्स अ टन स्वीटहार्ट। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। Okay.